Turn on the videos. Audible clearly? Chalo. Draw the columns. Next problem. Finished, I think, 9th problem in the previous lecture. Okay. Take out problem number 12. 12th problem. The peculiar type. Sum number 12. सर Yes, Tatvish. समय जो एक्सपेंसेस था उसका Sorry. Expenses था उसका. हेलो. हेलो सर हाँ. वो लोग ने करंट ईयर में पे किया था लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा, लास्ट ईयर लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग होगा ना. हाँ इसीलिए ये साल पे किया ना. हमने किया भी एक सम में. अपना शीट का सम नंबर 6. सम नंबर 6 of the sheet. Expenses of 2006. Same that. लास्ट ईयर का देना बाकी था, इसलिए ये साल पे किया है. एक्सपेंसेस ऑफ 2006 सम नंबर 10 में भी था, सम नंबर 6 में भी था, सम नंबर 10 में भी था. शीट का सेम ही है वो. लास्ट ईयर का ये साल क्यों पे किया है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. लेट्स स्टार्ट. ट्वेल्थ सम. In the books of Medical Society Nagpur, income and expenditure for the year ended. If you check properly, the receipt and payment is for the year ended 31st March 07. So what is the current year? What is the current year, guys? 67. Year ended 31st March 07. Okay? And balance sheet as on again 31st March 07. एक और balance sheet we need to make, that is 31st March 06. 31st March 06. So two balance sheet sum. Why are we making the opening balance sheet, guys?
What is the reason for making opening balance sheet? Capital fund. Capital fund. कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ही एक रीजन है जिसके लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। कैपिटल फंड अगर दिया है क्वेश्चन में तो ओपनिंग बैलेंस शीट की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग से वी कैन स्टार्ट एंड कंटिन्यू, ओके। रिमेंबर दैट सम नंबर 12 now. First part, start with the payment side, mark it down. Payments for medicines. Where you'll write payments for medicines. Obviously, it's a medical society, it's a hospital. So, where will your payments for medicine go? Expense. Expense. Payments for medicine is expense. Okay. Then we have honorarium to doctors. Honorarium to doctors. That's Expense. also expense. Like salary. ऑनरेरियम मतलब विजिटिंग डॉक्टर्स को सम प्रोफेशनल नॉलेज शेयर करने के लिए हम लोग जो पे करते हैं, दैट इज ऑनरेरियम, ओके। सैलरी ऑन मंथली बेसिस, ऑनरेरियम इज ओकेजनली। Salaries are expense, honorarium is also expense, sundry expense are expense, equipment purchased. What are equipment purchased? Assets. Assets. Always assets, हाँ। Equipment purchase का कोई thoughts देखने की जरूरत ही नहीं है। Equipments, instruments are always there. Instruments are of smaller values like your BP meter, your diabetic check meter. ये सब smaller value amounts को हम लोग instruments बोलते हैं। Bigger value होता है ECG meter होता है तुम्हारा, या कोई बड़ा ये होता है अपना एक्सरे मशीन होता है, या तुम्हारा CT स्कैन मशीन होता है। These are all equipments. So equipments, instruments, both are assets. Charity show expenses. Where do you put charity show expense? Expense. Expenses. Cash on hand is what? Assets. Cash on hand is assets. At the end, at the beginning, opening वाला cash on hand कहाँ जाएगा? 1406 वाला. Last year balance. Last year balance. balance sheet asset. Okay, last year का closing value of asset था, ये साल वो asset account में opening balance करके दिख रहा है तुमको। सब्सक्रिप्शन एक ही दिया है, ईयर वाइज नहीं दिया, एक ही सब्सक्रिप्शन अब फिलहाल कहाँ जाएगा? फिलहाल वेयर you'll put that subscription? Income. You'll put it under income. Okay, for the time being it will go under income. This subscription will go under income. Is that clear? And is this year wise subscription or total subscription, guys? Think. 50,000 total. मतलब इसके अंदर कुछ भी पड़ा हो सकता है, लास्ट ईयर का भी रिसीव्ड हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव्ड हो सकता है, ओके। तो दिस सब्सक्रिप्शन यू विल हैव टू डू ऑल द एडजस्टमेंट प्लस माइनस एवरीथिंग। ईयर वाइज जब भी होता है ना तो माइनस वाला एडजस्टमेंट नहीं होता है, याद रखना। याद है, ईयर वाइज लास्ट ईयर का अलग दिया है, नेक्स्ट ईयर का अलग दिया है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं होती थी अब तक। यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन है। हमने स्टार्टिंग में वैरायटी देखी थी ये टाइप की, बिगनिंग 2-3 सम्स में थे। तो 50,000 सब भेलपुरी है, मसाला सब्सक्रिप्शन है, उसको अपने को फिल्टर आउट करके करंट ईयर की इनकम बनानी पड़ेगी। इनकम साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे अपने को करंट ईयर का इनकम अलग से दिखाना पड़ेगा फिल्टर आउट करके। याद रखना ये 50,000 फिलहाल यू विल राइट इट अंडर इनकम। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा 50,000 इज इनकम, बट इसमें कुछ ना कुछ होगा एडजस्टमेंट, विल सी दैट। डोनेशंस के बारे में पढ़ो, क्या दिया है, any information about donations? Check. Donations के बारे में कुछ information नहीं दिया है, so where do you put donations in case of absence of any information? Income. Income. Donation, subscription, grant. Donation, subscription, grant. ये तीनों चीजें income में. Nothing is given, income. Interest on investments. Interest कहाँ जाएगा? Where do you put interest on investments? Income. Interest on investment income at the rate of 7% दिख रहा है आपको? वो at the rate of 7% किस पे लिया होगा आपने? Investment. Investment. तो वो देख के बता सकते हो इन्वेस्टमेंट्स कितने के होंगे। अगर 7% से इंटरेस्ट 7,000 रुपीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी? 1 lakh. 1 लाख रुपीज। सिंपल सा लॉजिक है जो आपको दिया भी है नीचे डिटेल्स में। सर वो तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है ना थोड़ा, तो 7,000 से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% फॉर द ईयर 7,000। 7,000 इज रिसीव्ड। मतलब इसमें कुछ 7,000 जो रिसीव्ड है वो 7% के हिसाब से मिला है।
करेंगे करेंगे, पता करेंगे, आगे एक और हिंट मिल जाएगा। चैरिटी शो प्रोसीड्स, इनकम, income. Come to the adjustment. Subscription fees 1406 and 31st March 07. 1406 and 31st March 07. What is 1406? What is 31st March 07? Last year, current लास्ट year. ईयर एसेट और करंट ईयर एसेट। कुछ भी हो सकता है, एसेट लायबिलिटी भी हो सकता है, we never don't know. Basically last year data and current year data. Okay. Subscription fees, पहला लाइन पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फीस, उसके आगे लिखना रिसीवेबल, जस्ट मेक दैट करेक्शन, रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल। अब देखो, पहले देखना लास्ट ईयर का 500, ये क्या था, लास्ट ईयर रिसीवेबल था। ओके, आराम से सोचो, अभी लास्ट ईयर रिसीवेबल का दो इफेक्ट्स क्या होगा। लास्ट ईयर रिसीवेबल 500, लास्ट ईयर एसेट इनकम में से माइनस, लास्ट ईयर एसेट क्योंकि लास्ट ईयर रिसीवेबल था ऑब्वियसली, एंड इनकम में माइनस करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है, डेफिनेटली करना है। क्यों करना है? इधर कोई ईयर वाइज इनकम दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का इतना मिला, करंट ईयर का इतना मिला, नेक्स्ट ईयर का इतना मिला, ईयर वाइज कुछ ब्रेकअप नहीं दिया है ना अपने को। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, वो 50,000 के अंदर सब पड़ा हुआ है, वो रिसीट है, वो रोकड़ा मिला है आपको। लास्ट ईयर का 500 रुपया उसके अंदर पड़ा हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो 50,000 में से 500 सब्ट्रैक्ट होगा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड लास्ट ईयर एसेट। लास्ट ईयर एसेट तो लास्ट ईयर जाता ही है, रिसीवेबल है, इट गोज टू लास्ट ईयर एसेट। गॉट इट? सो एडजस्टमेंट अमाउंट अगेन 2 इफेक्ट्स, रिमेंबर। ओके, वो ईयर वाइज है तो ऑटोमेटिकली रिसीट पेमेंट में दिखेगा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 500 रुपीज का पहला जो रिसीवेबल है लास्ट ईयर वाला, समझा सबको? लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। फिर आगे बढ़ो तो दिया है 1000, राइट हैंड साइड पे दिया है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 1000। What are the two effects of current year outstanding subscription? Add to subscription and asset. Add to subscription and asset. ये तो current year का मिलना बाकी है, clear cut. Add to income. Okay, ये ऊपर दिखेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 50,000 मिला और 1,000 मिलना बाकी है। Add to subscription belongs to this year and assets of this year. फिर नेक्स्ट लाइन पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। कौन सा रिसीव्ड इन एडवांस है ये? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है कि ये सब्सक्रिप्शन का पैसा लास्ट ईयर मिला है, लेकिन इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड, मतलब लास्ट ईयर ज्यादा मिल गया था। तो सोचो क्या होना चाहिए दो इफेक्ट, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड 1000, लास्ट ईयर लायबिलिटी और ये सब इनकम में से माइनस, इनकम में से माइनस, Plus. सॉरी प्लस 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 प्लस, इनकम में ऐड एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। व्हाई? 1000 रुपीज क्या है? 06 का प्री रिसीव। 06 का प्री रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? ये 1000 पैसे आपको 06 में मिले हैं, लेकिन इनकम 07 की है, करंट ईयर की। ओके, तो पैसे उधर मिले हैं ना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की इनकम में से माइनस किया होगा। ये साल की इनकम है ना, तो ये साल की इनकम में ऐड करो। गॉट इट? So, ये साल की इनकम में ये ऐड हो जाएगा 1000 एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी लास्ट ईयर्स लायबिलिटी। लास्ट ईयर्स लायबिलिटी बिकॉज लास्ट ईयर ये साल का पैसा मिला था, लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस। और एक लास्ट आइटम दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे 500, दैट इज व्हाट? करंट ईयर्स प्री रिसीव। करंट ईयर का क्या करते हो? रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर का प्री रिसीव का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया, नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया तो क्या करोगे आप? लायबिलिटी और माइनस, लायबिलिटी, करंट ईयर लायबिलिटी एंड व्हाट? लेस की ऐड, माइनस, माइनस की प्लस, बोलो। करंट ईयर प्री रिसीव्ड माइनस करोगे कि प्लस करोगे? माइनस, माइनस माइनस, माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? जो 50,000 ये साल रिसीट दिख रहा है ना 50,000, उसके अंदर ये 500 पड़ा हुआ है नेक्स्ट ईयर का, जो इस साल को बिलोंग नहीं करता, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। जैसे वो 1000 लास्ट ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा था, ये साल को बिलोंग कर रहा था, वैसे ये 500 ये साल को बिलोंग नहीं कर रहा है, नेक्स्ट ईयर की इनकम को बिलोंग कर रहा है। ये साल में से माइनस नेक्स्ट ईयर की इनकम में ऐड हो जाएगा।
ये 500 जो प्री रिसीव्ड है करंट ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम में ऐड हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. दो रिसीवेबल हो सकते हैं, दो प्री रिसीव्ड हो सकते हैं. दो रिसीवेबल, दो प्री रिसीव्ड. करंट ईयर रिसीवेबल add to subscription and asset. Last year receivable less from subscription and last year asset. Current year pre-received less and liability of this year. Last year pre-received add to income and liability of last year. Is that clear? All four adjustments you got? Any doubts? ईयर वाइज कुछ नहीं दिया है तो सब कुछ होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा. वो 50,000 के अंदर मैं बोला ना रोकड़ा है, सब कुछ मिला हुआ है. लास्ट ईयर का भी पड़ा हुआ है, वो भी माइनस किया. नेक्स्ट ईयर का भी पड़ा हुआ है, वो भी माइनस किया. ठीक है. वैसे देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देयर आर टू स्टॉक्स गिवन टू यू, 10,000 and 15,000. which one is which one? Opening stock and closing stock. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. मुझे सोच के बताओ पहले, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लेस करने का एंड एसेट क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक एंड एसेट्स. सॉरी, Less from the stock and asset. लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एसेट्स ऑफ दिस ईयर. करंट ईयर प्रीपेड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक? add to the stock and add last to the year medicine, add to expense. medicine, add to expense, last year. and last year asset, last year asset. ये समझ में आया सबको? प्रीपेड है वो बेसिकली. क्लोजिंग स्टॉक इज दिस ईयर्स प्रीपेड, ओपनिंग स्टॉक इज लास्ट ईयर्स प्रीपेड. उसके बाद दिया है आपको अमाउंट्स ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर. व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट्स ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर? अमाउंट्स on ड्यू टू credit. मेडिसिन Amount payable. टेबल म्हणजे आउटस्टैंडिंग. बेसिकली दे आर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन एक्सपेंस. करंट ईयर का भी है, लास्ट ईयर का भी है. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हो पहले वो बोलो. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करोगे आप? Add to expense and liability. Add to expense and liability. Add to expense and liability सिंपल है. देना बाकी है ये साल का, वो कितना है? 12,000. और 8,000 क्या है? 8,000 last year outstanding. Last year लास्ट का ईयर का Minus आउटस्टैंडिंग है. expense and तो last year liability. माइनस करना है कि नहीं करना है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. कितने का है? करना है. क्यों करना है. माइनस करना है? क्यों माइनस करना है? क्योंकि जो आपको पेमेंट दिख रहा है ना 30,000 जो आपने रोकड़ा दिया मेडिसिन का, उसमें वो लास्ट ईयर का भी तो पे किया होगा. कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करने का पे किया है. साइकिल ऑफ एक्सपेंस, पहला तुम लास्ट ईयर का पे करते हो, फिर करंट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर. तो ये 8,000 तुमने वो 30,000 के अंदर इंक्लूडेड है, पे कर दिया है, तो हटाओ. ये साल का एक्सपेंस नहीं है, हटाओ. लेस फ्रॉम मेडिसिन. एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग मेडिसिन ऑफ लास्ट ईयर कहाँ जाएगा? Last year liability. Last year liability. लास्ट ईयर लाइबिलिटी. सर तो ये You जो understand? सी और डी है, सबका पेमेंट फॉर मेडिसिन में होगा ना? सबका पेमेंट फॉर मेडिसिन होगा. स्टॉक मतलब प्रीपेड और पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग. जैसे सब्सक्रिप्शन पे था ना रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस, वैसे मेडिसिन पे पेएबल और पेड इन एडवांस, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग. अभी इक्विपमेंट्स एकदम ध्यान से देखो. आई एम मेकिंग अ नोट फॉर दैट, वर्किंग नोट बना रहा हूं. जस्ट लुक एट द इक्विपमेंट्स केयरफुली. सी क्या दिया हुआ. वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट. Value of equipment. Tell me guys, what are equipments? What are equipments? Assets. Equipments are assets, right? So what is that 21,000 and what is that 30,000? 21,000 क्या है वो बताओ. Last year asset. Last year asset. लास्ट ईयर एसेट होता है. फिर मैंने आपको बताया था, याद है, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट दिखता है उसको लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाने के बाद कितने एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है उसमें? 3. 3 adjustments possible. What are those 3 adjustments you remember? SPD. SPD. What is that SPD? Sale, purchase, Sale, and purchase. depreciation. So sale, purchase, depreciation. Equipment last year का लेके आना है current year में, फिर check करना है do you have any sale of equipment. अगर होता तो कहाँ दिखता? Question में Receipt. Receipt. receipt side. बेचा तो पैसा आया है ना, रोकड़ा है. तो check on the receipt side. Do you find any sale of equipment? No. So no sale, right? We check on the payment side. Do you find any purchase of equipment? Yes. No. Yes. How Yes. much? 15,000. तो 21,000 का था, 15,000 का और ऐड कर दिया तो ये हो गया आई थिंक 36,000. Yes.
Yes. आइडियली क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट शुड बी 36, ये सेल तो है नहीं, परचेज किया है, 21 में 15 ऐड किया तो 36,000, 36 होना चाहिए। वहां पे कितना दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? पढ़ो 30 ऐसा कैसा हो गया? 36 का 30 क्यों हो गया? 6,000 डेप्री। Depreciation. ऐसा दिमाग चलना चाहिए, चल रहा है क्या? 36 का 30 हवा में से कैसा हो गया? उधर 30,000 दिया आपको क्लोजिंग वैल्यू, 36 का 30 होने का एक ही रीजन है, डेप्री, कि या तो सेल होएगा या तो डेप्री होएगा। सेल है तो रिसीट में दिखना चाहिए, वो तो दिख नहीं रहा है, बचा एक ही आंसर, डेप्रीसिएशन। तो बोलने का मतलब दोनों में से एक इन्फो देगा। अब तक के समय अपने को डेप्री दे रहा था, हम लोग डेप्री माइनस करके एक्सपेंस में लिखते थे। ये समय डेप्री नहीं है, ये समय फाइनल वैल्यू दे दिया, दिख रहा है वहां पे 30,000 आउटर कॉलम वैल्यू। तो डेप्री ढूंढ लो, बैलेंसिंग फिगर डेप्री है, एडजस्टमेंट तो डेप्री ही है। दो इफेक्ट डेप्रीसिएशन का क्या होएगा? लेस फ्रॉम इक्विपमेंट एंड एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? बट सीधा सीधा नहीं दिया, डेप्रीसिएशन 20% ऐसा नहीं दिया। आपको बोला कि नहीं आप ढूंढो कितना डेप्रीसिएशन है, हम लोग ने वैल्यू दे दी है, 30,000 इज द क्लोजिंग वैल्यू। इज इट क्लियर? नाउ सेम वे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग देखो आप लोग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है। या सर हम लोग ऐसा भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि बिल्डिंग का अप्रिसिएशन, अरे इक्विपमेंट्स का अप्रिसिएशन हुआ। अप्रिसिएशन हाँ। कहाँ पे अज्यूम करोगे? 21,000 से 30,000 हुआ करंट ईयर में, तो अप्रिशिएट भी तो हो सकता है ना। और परचेज का क्या करोगे? फिर परचेज ऐड 15,000। तो 45 हो जाएगा। हाँ, तो पहले 9,000 से हम लोग अज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर से करंट ईयर 21 में। का 30 किया, हाँ, तो परचेज किया तो अप्रिशिएट 45 हो गया, फिर राइट? ऐड 45 हो 15। गया। हाँ हाँ तो 45 हो जाएगा ना। हाँ, तो वहां पे तो क्लोजिंग वैल्यू दिया है 30, पर थोड़ी बोला कि क्लोजिंग वैल्यू 30 है। ऊपर पढ़ो डेट। 3137 दिया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में आया तो लास्ट ईयर से अप्रिशिएट हुआ। करंट ईयर में क्या आता है? ओपनिंग वैल्यू आता है, राइट? हाँ, तो वन, दिस इज द करंट ईयर। व्हाट इज द करंट ईयर? 6-7 6 7। व्हाट इज द बिगिनिंग? 6 1406। तो हाँ। 1406 में कितना था वैल्यू? 21,000। वो लास्ट ईयर से आया है। हाँ अभी ये साल में जो हुआ उसके बाद क्लोजिंग 31 मार्च 07 मतलब लास्ट डेट हो गया ईयर का। ऑन दैट डेट द वैल्यू इज 30,000। ओके। तो आफ्टर ऑल द चेंजेस हुआ है ना, वो आफ्टर ऑल हाँ। परचेज सेल डेप्रिसिएशन के बाद एंड में कितना होगा? 30,000। समझ में आ रहा है? तो ये 30,000 एंडिंग डेट पे दिया हुआ है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, कुछ अलग डेप्री अपरी कुछ नहीं दिया है। तो मतलब ये कौन सा वैल्यू है? ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है 30,000। आउटर कॉलम वैल्यू दे दिया आपको 30,000। गॉट इट? सो 21 में सब एडजस्टमेंट करने के बाद अंत में आउटर कॉलम में आपको 30, जैसे 21 लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वैसे 30 ये साल का क्लोजिंग होता है। 21 लास्ट ईयर का सब एडजस्टमेंट के बाद वाला था, 30 ये साल का सब एडजस्टमेंट। चेक फॉर बिल्डिंग, चेक फॉर बिल्डिंग कितना दिया हुआ है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का 40,000 था ओपनिंग वैल्यू। कैन यू गाइस सी दैट 40,000 वाज ओपनिंग वैल्यू? 06 में it was how much? 40,000. What is that 40,000? Opening or closing? Opening. It was there at the beginning 40,000, right? Yes. अभी बिल्डिंग पे भी तीन चीज पॉसिबल है, सेल, परचेज, डेप्री। तो चेक फॉर सेल ऑन द रिसीट साइड. Do you have any sale? Do you have any sale of building? Any info about No. sale? No. Do you have any purchase of building on the payment side? Check. No. That too no. So एंड में कितना होना चाहिए था? वैसे 40 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया? देखो उधर कितना दिया हो. What is the value of building at the end? What is the value of building at the end? 38 38. ये 40 का 38 क्यों हुआ? depreciation. डेप्रीसिएशन। चमक रहा है कुछ? 40 का 38 कैसा हो गया? That is 2000 का डेप्रीसिएशन. Is this clear? आउटर कॉलम अगर कुछ डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है
दो वैल्यू दे दिया एसेट के, ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ऑब्वियसली क्लोजिंग इज फाइनल वैल्यू, ओपनिंग इज ओपनिंग वैल्यू, बीच का चेंजेस करो, आपको ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या परचेज या डेप्री या सेल। ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तीन ही एडजस्टमेंट है, सेल, परचेज, डेप्री, सेल, परचेज एंड डेप्रीसिएशन। इज दैट क्लियर? सेल दिया है, रिसीट में दिया है, चेक कर लो, परचेज दिया है, पेमेंट में दिया है, चेक कर लो, नहीं है तो बचा डेप्रीसिएशन। बाय चांस इधर बिल्डिंग 40 का 45 होता, 40 का 45 होता तो क्या हो जाता वो 5000 अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन हो जाता। ये सेल परचेज तो कुछ था नहीं इन्फॉर्मेशन सब में, तो बचा खाली सर 40 तो का 45 क्यों? अप्रिशिएट का दो इफेक्ट क्या रहेगा, एक तो ऐड टू एसेट, एंड इनकम में थोड़ी आएगा सर। इधर जाता है अप्रिसिएशन। सर पर वो रेकरिंग थोड़ी है, हर साल थोड़ी ना अप्रिसिएशन होगा। ये अप्रिसिएशन आपको रेकरिंग अज्यूम करना पड़ेगा, हर साल वाला अज्यूम। डेप्रिसिएशन क्या करते हो? फाइनल अकाउंट, लेस फ्रॉम एसेट एक्सपेंडिचर, पीएनएल डेबिट। अप्रिसिएशन क्या करते हो? फाइनल अकाउंट में पीएनएल add to क्रेडिट। asset and P&L credit। ये अपना पीएनएल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द पीएनएल ऑफ एनपीओ, जाएगा ना इधर इनकम साइड। गॉट इट? we need to assume it's a recurring type of expense and add it to that। इधर तुमको revaluation reserve वगैरह का concept नहीं है, वो companies में होता है। occasional appreciation that goes to revaluation reserve on the liability side, वो तुमको इधर नहीं होता है एनपीओज। एनपीओज में जो appreciation है, चाहे रेगुलर इरेगुलर है, तो भी नॉमिनल अप्रिसिएशन अज्यूम करके पुट इट अंडर इनकम साइड। ओके, डोंट पुट इट अंडर लायबिलिटी। अप्रिसिएशन है तो इनकम, डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंडिचर, अज्यूम इट इज रिकरिंग, या फिर अगर नॉन रिकरिंग है अज्यूम इट इज अ नॉमिनल अमाउंट लाइक सेल ऑफ स्क्रैप और सम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, वो भी नॉन रिकरिंग होता है, बट नॉमिनल अमाउंट्स होते हैं तो वी शो देम अंडर इनकम। ओके सर वो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, उस पे सर चार मतलब आउटस्टैंडिंग है ना, वो आउटस्टैंडिंग के जैसा हम लोग करते थे सब्सक्रिप्शन में। कर रहा हूँ मैं सॉल्व। आउटस्टैंडिंग है, दोनों आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। इन्वेस्टमेंट्स पढ़ो, कितना था लास्ट ईयर, करंट ईयर पढ़ो। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द लास्ट ईयर? 1 lakh। वेयर इट वुड अपीयर लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट्स 1 lakh लास्ट ईयर assets एंड ब्रिंग इट टू दिस ईयर एसेट। current year। Is there any sale of investment or purchase of investment or depreciation on that? Nothing. No. So as it is 1 lakh last year था, brought it to this year 1 lakh। अभी इस पे रिसीट साइड पे देखो 7% इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना होता है 1 लाख का 7%? 7000। तो शुरू से एंड तक इन्वेस्टमेंट था ना, तो कितना महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए इस पे? 12 मंथ। और मिला है पूरा का पूरा 7000, दिख रहा है? कुछ भी है एडजस्टमेंट? नो एडजस्टमेंट, पूरा 7000 जो मिलना चाहिए मिल चुका है। ओके, सो रिसीव्ड 7000 एट द रेट ऑफ 7% दिया हुआ था वहां पे, तो कुछ हिडन एडजस्टमेंट जैसा है नहीं बेसिकली। 7000 रुपया ही होता है। इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट हम लोग नॉर्मल करेंगे ना, इनकम और एसेट। नॉर्मल इनकम साइड वन इफेक्ट, रिसीट में दिया है ना, मतलब मिल चुका है, वन इफेक्ट इनकम साइड। कुछ रिसीवेबल होता या कुछ प्री रिसीव्ड होता तो फिर हम लोग दो इफेक्ट देते, वो तो कुछ है नहीं यार। बोलो एनी डाउट यहां तक? सब्सक्रिप्शन 4 डॉट्स subscription 4 dots, put 4 dots on subscription, 4 dots on subscription, 4 dots on medicines, 4 dots on subscription, 4 dots on medicine। Why 4 dots you got that? Receivable received in advance है लास्ट ईयर करंट ईयर, और मेडिसिन पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर करंट ईयर। एंड इक्विपमेंट पे कितना आएगा डॉट, बता सकते हो? हाउ मेनी डॉट्स ऑन इक्विपमेंट? How many dots on equipments? 2 dots। Why 2 dots? Purchase and depre। परचेज भी और डेप्रीसिएशन भी है ना, लास्ट ईयर का लेके आओगे, फिर परचेज किया है, फिर डेप्रीसिएशन भी आएगा। So equipment 2 dots, building how many dots? 1 dot depreciation। 1 dot depreciation, that's it। So start along with me। एक शॉर्टकट यहाँ पे आपको पहले भी पता है, रिसीट पेमेंट का आइटम का एक ही इफेक्ट है,
receipt payment like trial balance, just one effect. Adjustment, automatically they'll have two effects. Okay? That's a shortcut you can keep in the back of your head. बाकी logically सोचते जाओ और crack करते जाओ. Payments for medicines. Payments for medicines, that will be what? Two medicines. या payment for medicines, that is expense. ये 30,000 है ना, ये expense total नहीं है, ये आपने पे किया है. ये इतना रोकड़ा दिया है आपने ये साल मेडिसिन के लिए. मैंने ये साल जेरोक्स वाले को 50,000 रुपया दे दिया. ये साल मैंने जेरोक्स वाले को 50,000 रुपया दे दिया रोकड़ा. तो जरूरी थोड़ी है मेरा जेरोक्स का खर्चा 50,000. मेरा जेरोक्स का खर्चा 40,000 रुपया हुआ रहेगा साल का. मैंने उसको 50,000 दे दिया, वो पेमेंट है. ऐसा ये 30,000 पेमेंट है. इसमें खर्चा कितना है? 40 है ना मेरा, तो मैं प्रीपेड 10 माइनस कर देगा. वैसे मेडिसिन में भी आपको एडजस्टमेंट दिया. क्या है पढ़ो. पहला तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन. व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन? व्हाट आर यू सपोज टू डू? प्लस और माइनस? बोलो. हेलो. माइनस. माइनस closing stock of medicine. Closing means current year's prepaid. Closing stock of medicine is current year prepaid. इसको माइनस करो. 15,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर का है. आपने रोकड़ा दे दिया है, ये नेक्स्ट ईयर का 15 इसके अंदर पड़ा था तो हटा दिया. 10,000 क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक है, वो ऐड कर दोगे. ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. क्यों ऐड करने का? क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो ये साल काम आया. एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर 10,000. उसके बाद और दो है सर. अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई. ड्यू म्हणजे आउटस्टँडिंग. तो करंट ईयर आउटस्टँडिंग, व्हाट आर यू सपोज टू डू? Add outstanding medicine of current year 07. You are supposed to add, that is 12,000. And last year outstanding medicine क्या करने का? Subtract. क्यों subtract? कि लास्ट ईयर का जो था पेएबल वो ये साल पे किया रहेगा, तो वो 30,000 के अंदर पड़ा है. कितना पड़ा है 30,000 के अंदर? 8,000. 30,000 के अंदर 8,000 लास्ट ईयर का खर्चा पड़ा हुआ. Are you understanding this? So inside that 30,000, you have 15 also which you have paid for next year. You have 8 also which you have paid for previous year. वो दोनों को हटाया. And current year का outstanding ऐड कर दिया और last year का prepaid भी ऐड कर दिया. वो current year का expense. तो ये सब करने के बाद मुझे कितना मिल रहा है? current year expense 15 plus 10 25 47 and 29,000 आ रहा है क्या? Please check. Are you getting 29,000 in the outer column? सर. बोलो. सर अभी समझो ये इसमें आउटस्टैंडिंग मेडिसिन है 06 का. अभी वो नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन है 06 का. अगर वो नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहता तो क्या आएगा? मतलब सेम अमाउंट तो का. फिर इधर से माइनस नहीं होएगा. अगर वो लास्ट ईयर का भी देना बाकी था और अभी भी देना बाकी है, हाँ, तो माइनस नहीं होएगा. तो फिर सीधा लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी. तो इसका जैसे सब्सक्रिप्शन किया ना हमने स्टिल इन अरियर्स, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट, माइनस नहीं करते उसको. ऐसे तो ये लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी. लास्ट ईयर लायबिलिटी में ऐड होगा और बाद में करंट ईयर लायबिलिटी में दिखेगा ना. हाँ, लास्ट ईयर लायबिलिटी में ऐड होगा, करंट ईयर लायबिलिटी में. मतलब लास्ट ईयर लायबिलिटी 12+8 आएगा ना. फिर 12+8 20 और बाद में क्योंकि लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग बाकी है ना. करंट ईयर में 12 + 8 20 हो जाएगा. हाँ, 12+8 20. लास्ट ईयर में 8, करंट ईयर में 12 + 8 20. वो भी आएगा आगे एग्जाम. देन मेडिसिन के बाद वी हैव व्हाट? ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स. डू यू हैव एनी डॉट ऑन ऑनोरेरियम? प्लीज चेक. ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, एनी डॉट? नो डॉट. सैलरीज, again no dot. 10,000 27,500. सन्ड्री एक्सपेंस पे भी कोई डॉट नहीं है. ये डॉट ना होने का मतलब समझ रहे हैं तुम लोगों को? डॉट ना होने का मतलब क्या हो रहा है? जितना पे किया ना उतना ही खर्चा है.
जितना इनकर किया उतना ही पे किया, ज्यादा नहीं कम नहीं, लास्ट ईयर का लफड़ा नहीं, नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं। इक्विपमेंट परचेज, सी इक्विपमेंट मतलब एसेट, एसेट जैसा दिखे आपका बत्ती चमकना चाहिए, उसको पूरा शुरू से एंड तक खत्म करना है एसेट का एडजस्टमेंट। इक्विपमेंट मुझे बताओ लास्ट ईयर कुछ था क्या? वाज देयर एनी इक्विपमेंट इन द लास्ट ईयर? Yes. कितने का था लास्ट ईयर इक्विपमेंट? 21. तो लास्ट ईयर आउटर कॉलम में लिख दो, जाके लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिख दो आउटर कॉलम 21, ठीक है। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यू विल बिकम ये साल का ओपनिंग, तो ये साल के ओपनिंग में ये इक्विपमेंट बन के आएगा 21 इनर कॉलम। इसमें 3 एडजस्टमेंट पॉसिबल है, अपने को पता है क्या क्या, सेल, परचेज और डेप्री। सेल है क्या इक्विपमेंट का? डू यू No. हैव एनी सेल? नो। डू यू हैव एनी परचेज ऑफ इक्विपमेंट? No. यस। Yes, yes. Purchase of पेमेंट साइड पे है ना परचेज, कितने का परचेज है? 15,000। पेमेंट साइड पे वो करंट ईयर ही खरीदा है, तो ये 15 प्लस 21 कितना हो जाता है? 36। 36 वाला 30 कैसा हो गया अपने आप? एंडिंग में 30 हो गया है वो। तो ये जो है 6000 ये डेप्री है, अभी अभी हमने देखा वर्किंग नोट, 6000 इज डेप्रीसिएशन। बस एसेट्स पे यही पॉसिबल है, सेल, परचेज एंड डेप्री, और कुछ नहीं आने वाला है। तो इक्विपमेंट्स हो गया तुम्हारा डेप्री के साथ 40,000। देन वी हैव चैरिटी शो एक्सपेंस। चैरिटी शो एक्सपेंस आर एक्सपेंडिचर। चैरिटी शो सर एक्सपेंस इक्विपमेंट का वो वर्किंग नोट दिखाना है? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, just for your understanding. Directly equipment you can show in the balance sheet as I have shown. Huh? Then charity show expense is expense. Closing balance of cash, where you will show closing balance of cash? Current year balance sheet 4,500, इतना कैश बच गया जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा और काम आएगा अपना नेक्स्ट ईयर रिसीट पेमेंट में एड लेस करके। एसेट का वैल्यू है एंडिंग में 4,500। ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा? ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश ऑन हैंड वेयर यू विल राइट लास्ट ईयर एसेट, बिकॉज लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो। सब्सक्रिप्शंस किधर दिखेगा? पूरा 50,000 आपने रिसीव किया है, कुछ ब्रेकअप नहीं दिया है ना ईयर वाइज, तो पहले तो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन उठा के डाल दो आपका इनकम में 50,000। ये 50,000 है ना रोकड़ा है, रोकड़ा। This 50,000 is not income, guys. This 50,000 is रोकड़ा। You have received 50। अब मेरे को ये साल मेरे पास 50 स्टूडेंट है जिसकी फीस 10,000 है, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख मेरी इनकम है, वो मेरे को मालूम है, बट इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने मेरे को नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी दे दिया 30,000 रुपया, और मेरे को ऐसे भी स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर नहीं दिया था, वो लास्ट ईयर वाले 20,000 अभी देखे गए, तो मेरे को रिसीव हुआ है 5,50,000, 5,50,000, बट आउट ऑफ दैट माई इनकम इज ओनली 5 लाख। तो दैट वे ये 50,000 आपकी इनकम नहीं है, ये रिसीट है, रिसीट, रोकड़ा मिला है, इतना पैसा मिला है आपको, ठीक है, इतना अमाउंट रिसीव किया आपने। अब आप इसको फिल्टर आउट कर रहे हो, कचरा निकाल रहे हो, लास्ट ईयर का निकाल दोगे, नेक्स्ट ईयर का निकाल दोगे, करंट ईयर का रिसीवेबल है, अर्नड है, तो ऐड कर दोगे जो मिलना बाकी है, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड ऐड कर लोगे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है। सब करने के बाद आउटर कॉलम में आपको ये साल का कमाया हुआ इनकम मिलेगा, अर्नड इनकम मिलेगा, जो हमें दिखाना है अक्रूवल बेसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो 50,000 पे व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स नाउ? सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल, मुझे बताओ लास्ट ईयर रिसीवेबल क्या करना है? लास्ट ईयर रिसीवेबल क्या करना है, प्लस की माइनस? बोलो। लास्ट ईयर का 500 रिसीवेबल, व्हाट आर वी सपोज टू डू? प्लस और माइनस? minus. माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 06। क्यों माइनस किया? वो 500 रुपया लास्ट ईयर मिलना बाकी था जो ये साल मिला है, 50 के अंदर पड़ा हुआ है, तो हटाओ उसको, इसलिए माइनस। करंट ईयर रिसीवेबल 1000, क्या करोगे बोलो फटाफट?
करंट ईयर रिसीवेबल 1000 Add. ऐड करंट ईयर रिसीवेबल मतलब ये साल मिलना बाकी है 07 का 1000 रुपया ऐड. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस क्या करोगे, प्लस की माइनस? लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस प्लस. इसका मतलब क्या है, ये पैसे आपको लास्ट ईयर मिले थे लेकिन इनकम ये साल को बिलोंग कर दिया. पैसे ये साल मिलेंगे नहीं, पैसे लास्ट ईयर मिल चुके हैं, इनकम ये साल को बिलोंग कर दिया. तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है वो लास्ट ईयर वाला 1000, वो ऐड करो. एंड करंट ईयर प्री रिसीव्ड, ये क्या करना है, करंट ईयर प्री रिसीव्ड Minus. लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 07, ये कितना है 500 रुपया. तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका 51 आ रहा है क्या? 51 आपका कमाया हुआ इनकम है, अर्न्ड इनकम. ओके, दैट्स अबाउट इट. देन वी हैव डोनेशंस. डोनेशंस जाएगा आपका इनकम में बाय डोनेशंस. कितना है बाय डोनेशंस? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो डोनेशंस आर इनकम 14500. Interest is also income by interest on investment. Is there any dot on interest? Please check. Interest on investment पे कोई dot है? कुछ नहीं है. Charity show proceeds are also income. So by charity show proceeds, that's your income, 10,000 rupees. ये हो गया आपका रिसीट पेमेंट. अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे. सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल, पहला 500 लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का रिसीवेबल का एक इफेक्ट हमने दिया हुआ है, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बताओ मेरे को. लास्ट ईयर का रिसीवेबल, लास्ट ईयर एसेट. लास्ट ईयर एसेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500. ये लास्ट ईयर का रिसीवेबल का दूसरा इफेक्ट दे दिया हमने. देन 1000 रुपीज करंट ईयर का रिसीवेबल. देखो एक इफेक्ट दिया हुआ है ऐड टू सब्सक्रिप्शन. दूसरा कहाँ जाएगा बताओ फटाफट. दूसरा किधर जाएगा? एसेट्स ऑफ Current. करंट ईयर. करंट ईयर एसेट कितना जाएगा 1000 जाएगा करंट ईयर एसेट. यहाँ पे कुछ स्टिल इन अरियर्स था गाइस, स्टिल इन अरियर्स था कहीं पे? वाज देयर एनी सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स जो लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी बाकी, ऐसा कुछ नहीं था. ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. बोलो. सर स्टील इन अरियर्स होता तो कैसे बताते वो? लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट. नहीं मतलब वैसे नहीं, ऐसे मतलब टेबल में एडजस्टमेंट में देते लास्ट ईयर 1000 स्टिल इन अरियर्स अलग से. गॉट इट? या फिर ऐसा इंफॉर्मेशन देते कि आउट ऑफ लास्ट ईयर 500 300 इज रिसीव, ऐसा दे देते. तो लास्ट ईयर का 500 मिलना बाकी है ना, उसमें से 300 इज रिसीव, तो माइनस खाली 300 करने का और 200 स्टिल इन अरियर्स. तो लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट 200 ऐसा देगा. क्लियर कट इंफॉर्मेशन देगा. विल कम टू नो, विल डू दोस सम्स आल्सो, आगे आएगा वैरायटी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. देखो लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस क्या करना है, एक तो ऐड किया हुआ है हमने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन को. दूसरा इफेक्ट क्या होगा लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड का बताओ. लास्ट ईयर का रिसीव्ड Liability. Last year लायबिलिटी liability. ऑफ लास्ट ईयर. तो 06 में लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, लास्ट ईयर लायबिलिटी जाएगा 1000. वैसे करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस का दो इफेक्ट क्या होगा. करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस एक तो लेस किया हुआ है, Current year liability. current year liability subscription received in advance, that is 500. current year received in advance, that is 500. then we have stock of medicine. देखो opening stock आपने already add किया हुआ है medicine को. what is the second effect of opening stock, not closing, opening stock. opening Last stock year का second balance effect. sheet. last year balance sheet what, asset or liability? Asset. asset. stock of medicine, last year asset कितना था ओपनिंग स्टॉक 10,000. ओके,
क्लोजिंग स्टॉक, उसका दो इफेक्ट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक एक तो लेस कर दिया, इस साल को बिलोंग नहीं कर रहा है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर मेडिसिन का एसेट्स। Current year current asset. year asset. Current year asset stock of medicine is 15,000. Current year asset. फिर अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, एक लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है? एक तो लेस किया हुआ है हमने, लेस किया हुआ है क्योंकि ये साल का एक्सपेंड नहीं है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन? बोलो। लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर लायबिलिटी मेडिसिन, इतना पैसा देना बाकी था, इतना देना बाकी था 8,000, एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 12,000, वो कहाँ जाएगा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन, करंट ईयर लायबिलिटी ऐड कर दिया है, एक इफेक्ट हो चुका है, दूसरा इफेक्ट करंट ईयर लायबिलिटी 12,000। देन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट देखो, हमने लास्ट ईयर का इक्विपमेंट 21,000 लिखा हुआ है, लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। करंट ईयर का 30 का दो इफेक्ट मत दे देना, करंट ईयर 30 तो इंफॉर्मेशन है, उससे क्या पता चला अपने को? क्लोजिंग वैल्यू 30 थी ना, उससे क्या ढूंढा हमने? What were we able to find out because of that 30,000? Depreciation. तो डेप्री का दो इफेक्ट आएगा, वन इफेक्ट इज लेस फ्रॉम इक्विपमेंट, एंड सेकंड इफेक्ट क्या आ जाता है? सेकंड इफेक्ट गोज टू Expenditure. वो दे दो, वो नहीं दिया है, टू डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट कितना है? 6,000। वैसा ही बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग लास्ट ईयर था 40,000, तो लेके आया करंट ईयर में, बिल्डिंग नहीं लिखा है तो लिख दो, लिखा नहीं है तो लिख दो बिल्डिंग। बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट में, बिल्डिंग 40,000, ब्रिंग इट टू दिस ईयर, बिल्डिंग 40,000, ये एडजस्टमेंट बाकी है, पूरा इफेक्ट बाकी है। लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट में। इज देयर एनी सेल और परचेज ऑफ बिल्डिंग? नो, सो देयर इज ओनली व्हाट? डेप्रीसिएशन। कैसा मिला डेप्री, समझ में आ रहा है? 40 का 38 हो गया। 40 का 38 क्यों हुआ? क्योंकि 2000 डेप्री था, तो लेस डेप्रीसिएशन 2000। अभी 38,000 का दो इफेक्ट देना है कि 2000 का दो इफेक्ट देना? बोलो। 2000। 2000। 38 तो इंफॉर्मेशन थी, आपको डेप्री देने की बदली बोला कि क्लोजिंग वैल्यू 38 है, तो कंफ्यूज मत होना, डेप्रीसिएशन ही एडजस्टमेंट है अपना, ये देना बाकी था एक इफेक्ट, एक लेस फ्रॉम बिल्डिंग, और दूसरा जाएगा आपका एक्सपेंडिचर में लिख दो, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 2000, 6 + 2 हो जाएगा 8, डेप्री भी हो गया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। देखो लिखा है क्या हमने? इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तो लिख दो, इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर कितने का था? लास्ट ईयर 1 लाख का था, ब्रिंग इट टू दिस ईयर, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इज दिस क्लियर? लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट came to this year at 1 lakh rupees. No sale, no purchase, no debit, as it is. We have completed all the adjustments. You tell me the capital fund at the beginning of the year. ये रीजन से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है। बताओ कैपिटल फंड कितना आ रहा है? 169,500. टोटल 1,78,500. and the capital fund is 169,500. 169,500. This closing capital will become what? Opening capital fund 169,500, right? Okay, now surplus or deficit. Go to your income expenditure account. 82,500. 82,500. That is total. Total. And surplus deficit 6,500 surplus. 6,500 ka surplus. This is to surplus, excess of income over expenditure. एंड ये जाएगा आपका सरप्लस किधर? आपके कैपिटल फंड करंट ईयर में ये ऐड हो जाएगा 6,500. So you get 176 and tallies on 188,500.
1,885. 1,885. Okay. That's your sum. That's your sum. बोलो. Any doubts? नहीं है तो next sum draw करो. 13th sum. Draw for 13th sum. Very, 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 very important sum. Sum number 13. 13th sum. Similar problem. Now you can check practically. जो हमारा हाउसिंग सोसाइटी का जो अकाउंट्स आता है हर साल के एंड में, आप उठा के कोई कॉपी पड़ी होगी किसी के घर पे तो चेक कर सकते हो. You'll be actually able to connect the points. कि what is last year data, what is current year data, कौन सा आइटम किधर से आया, तो एक्चुअली पता चलेगा कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ. रिसीट पेमेंट भी होगा उसमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होगा, दोनों बैलेंस शीट्स भी दी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस. वो चेक करके आप देख सकते हो आपकी सोसाइटी में क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या क्या रिसीट हो रही है, लास्ट ईयर डेटा, करंट ईयर डेटा. कैन चेक इट. एक्चुअली यू कैन चेक इट. इनफैक्ट यू कैन मेक ऑल्सो वन. Okay. So draw this next sum, 13th sum. देखो, discussing the 13th one. The books of X Club. For the year ended 31st March 07. So current year is 31st March 07. सर लास्ट सम का टैली किस पे हुआ था? 188 500. 188 5. 188 5. ये एक मिनट रखो ना इसको. या 188 500. चेक कर लो. एनपीओ में कोई आपका सेट फॉर्मेट नहीं है, सेट पैटर्न नहीं है. कंसेप्चुअल चैप्टर है पूरा. आपको अच्छे से समझ के एक एक आइटम सोच के करने का है. समझ में आएगा तो ही कर पाओ. सर बोर्ड में भी ऐसे एडजस्टमेंट टेबल फॉर्म में देते हैं ना? कोई फॉर्म में भी दे सकते, एनी फॉर्म में दे. नो सेट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. कभी ओपनिंग बैलेंस शीट दे देंगे, हार्ड रहता कभी है कि इजी रहता है? हाँ ये इजी पड़ता है थोड़ा सर्च करना. इजी रहता है. ये इतना टफ नहीं रहता है क्वेश्चन बोर्ड का, ना शीट से इजी है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 07. बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के नहीं. इन द 13th प्रॉब्लम, आर वी सपोज्ड टू मेक ओपनिंग बैलेंस शीट? Yes, no, maybe? Yes. यस. Definitely yes. Why yes? Capital fund is not due. कैपिटल फंड नहीं दिया तो जग मार के बनाना पड़ेगा. ढूंढने के लिए कैपिटल फंड को. तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे नीचे. दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 06. छोटू सा ओपनिंग बैलेंस शीट और ऊपर क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके लेट्स बिगिन.
फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट विद द पेमेंट्स. सैलरी, सेक्रेटरी एंड स्टाफ दोनों की सैलरीज दी गई है. कहाँ जाएंगी दोनों? expense, एक्सपेंस. कैंटीन एक्सपेंस, expense, मिसलेनियस एक्सपेंस, expense, कैश एंड बैंक दोनों का क्लोजिंग Asset. बैलेंस दिया हुआ है एसेट. उधर एक करेक्शन है सम में, वो जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है नीचे, उधर लिखना कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000. पेमेंट साइड पे लास्ट में खाली स्पेस है, उधर लिख दो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000. वो प्रिंटिंग एरर है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000. कहाँ जाएगा ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000? asset, एसेट. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग बनाया, खरीदा नहीं, बनाया. बनाया खरीदा एक ही बात. फर्नीचर होता तो ऐड टू फर्नीचर, बिल्डिंग है तो ऐड टू बिल्डिंग. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000, 15,000. 15 तो वो टोटल टैली होगा आपका अभी. 15 plus 5, 20, 22, 24, 24, 35, 45. यस. या पेमेंट्स में दिखाना है. पेमेंट्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15,000. ओके. कंस्ट्रक्शन मतलब बनाया और पैसा दिया. ऐसा. कम टू द रिसीट साइड, कैश एंड बैंक. ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? last year, asset, लास्ट ईयर एसेट. ओके. ओपनिंग बैलेंस विल गो टू लास्ट ईयर्स एसेट. सब्सक्रिप्शन अभी ध्यान से देखना, इज इट टोटल और ईयर वाइज? Year wise. ईयर वाइज. ईयर वाइज में भी कैसा दिया है देखो, 768 दिया है. व्हाट इज करंट ईयर? 6 7, 6 7. सो बेसिकली 7. तो 7 वाला कहाँ जाएगा? income, 7 वाला इनकम. 7 वाला इनकम जाएगा. 7 वाला कितना है? 5,500 करंट ईयर का मिला है वो इनकम. व्हाट अबाउट 6 का 500? 6 का 500 किधर जाएगा? लास्ट ईयर एसेट. लास्ट ईयर एसेट. विल यू सब्ट्रैक्ट दिस 500 फ्रॉम करंट ईयर्स इनकम? $1 million क्वेश्चन. No. No. Why? अलग से दिया, अलग से दिया है. तो लास्ट सम में क्यों माइनस किया था? अलग से नहीं दिया था. अलग से नहीं दिया था. समझ में आ रही है बात? ये समझने में सदियां बीत जाती है लोगों को. 1000 बार करने के बाद भी ये मिस्टेक हो जाती है. तो समझ के करना. 50,000 के अंदर लास्ट सम में वो पड़ा हुआ था, ईयर वाइज नहीं था, इसके लिए हमने माइनस किया. यहाँ पे ईयर वाइज है तो माइनस करने की जरूरत नहीं. सर इसमें जो 500 दिख रहा है वो रिसीवेबल है ना लास्ट ईयर का? हाँ, लास्ट ईयर का रिसीवेबल, लास्ट ईयर एसेट जो ये साल रिसीव किया है, रोकड़ा मिला है. मतलब मिल गए ना. हाँ, ये साल रिसीव किया आपने, लास्ट ईयर मिलना बाकी था. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट और ये साल मिल गया है रिसीट साइड. सर लेकिन हम लोग इनकम में ऐसे माइनस नहीं करोगे. 6,400 ले सकते हैं. यू कैन टेक 6,400. तो आपको फिर माइनस भी करना पड़ेगा. समझा? 6,400 आउटर कॉलम वैल्यू ली तो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर पड़ा है ना 500 रुपया लास्ट ईयर का. 08 का 400 बताओ. 08 का 400 क्या है वो? व्हाट इज 08 का 400? Received in advance. Received in advance. Okay, Mokshit, you Their don't liability. अरे you don't answer यार. Come on. 08 का किधर जाएगा? liability. Current year liability. Will you subtract this 08 का सब्सक्रिप्शन 400 रुपया from your income? No. No. Why? सर करंट ईयर का दिया है तो क्यों करने का एक्स्ट्रा? करंट ईयर का इनकम अलग से दिया है, नेक्स्ट ईयर का अलग से दिया है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. कतई नहीं है, कतई नहीं है. तो एक ही इफेक्ट जाएगा, करंट ईयर लायबिलिटी. इज दिस क्लियर? लास्ट सम में क्यों सब्ट्रैक्ट किया फिर? सर अलग उसमें से सब नहीं दिया था. नहीं दिया था. 50,000 भेलपुरी था, मिक्सचर था, सब मिलावट था, तो हमने फिल्टर आउट किया उसको. अभी वो 6,400 जो दिया आउटर कॉलम में, उसका कुछ करना है क्या? नहीं सर. नहीं, उसको इग्नोर मारो, उसको इग्नोर मारो. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक किधर जाएगा? इनकम. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर किधर जाएगा?
इनकम इनकम, रद्दी, भंगार, scrap, income. Sale of old furniture 2000 is which value? Book value या sale value? बुक वैल्यू वैल्यू सेल वैल्यू सेल वैल्यू पहुंच गए गांव. सेल वैल्यू है वो, सेल वैल्यू. कैश में दिख रहा है ना, रोकड़ा इतना मिला है 2000 रुपया, उसको कहीं रिकॉर्ड करना है क्या? कब भी सेल वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्ड No. करोगे कभी? नो नो सर्कल इट एंड सर्च फॉर बुक वैल्यू. कहीं तो मिलेगा. 3500 3500 दिखा, बास की नजर चाहिए, ऐसे वैसे नहीं मिलने वाला है. पॉइंट नंबर 3500 एच में मिलेगा, पॉइंट नंबर एच. ओके, पॉइंट नंबर एच में दिख रहा है सबको? मिला पॉइंट नंबर एच. yes बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 3500. इसका अर्थ बताइए. 3000 मोक्षित नहीं बताएगा, मोक्षित नहीं बताएगा, बाकी लोग बताओ. पर इसमें फिर 14,000 में से 3500 2,000 जाएगा ना. फर्नीचर सेल हुआ 3500 का फर्नीचर 2000 में सेल हुआ है. तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है अपने को? सर 14,000 में से इसका 3,500 जाएगा ना. देयर इज अ लॉस और प्रॉफिट, पहले ये बोलो. लॉस लॉस ऑफ 1500 1500 एसेट में से सेल के वक्त क्या माइनस करना है? बुक वैल्यू की सेल वैल्यू? बुक वैल्यू. बुक बुक वैल्यू वैल्यू कितने का था वही माइनस करोगे ना. कितने में बेचा वो थोड़ी करोगे. 10,000 का फर्नीचर 1,000 में बेचा, तो एसेट में से तो 10 ही माइनस करोगे. एसेट तो 10 का चला गया. तो वैसे ही फर्नीचर में से कितना माइनस करोगे? 3500 की 2000? 3500. 3500 बुक वैल्यू. एंड लॉस कहाँ दिखाओगे? वेर यू विल शो दैट लॉस? एक्सपेंस तो वो 2000 कहीं पर भी नहीं दिखाना है, सर्कल करना है. उसके जगह पे दो इफेक्ट दिखाओगे आप. दो इफेक्ट क्या? एसेट में से 3500 माइनस, और लॉस में, एक्सपेंडिचर में, लॉस ऑन फर्नीचर 1500. नेट इफेक्ट आपने 2000 का ही दिया है, समझ में आ रहा है? रिसीट साइड वाला 2000 का ही नेट इफेक्ट है, लेकिन 2000 वो कहीं नहीं दिखेगा. उसके जगह पे एसेट में से 3500, 3500 बुक वैल्यू, and expenditure side loss of 1500. Is this clear? अगर यही फर्नीचर 5000 में बेचा होता, 2 की जगह 5 में बेचा होता, मोक्षित आंसर मत करो, तो क्या करोगे? प्रॉफिट होता Profit. 2000 प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट कहाँ दिखता? इनकम 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 साइड. और फर्नीचर में से स्टिल हाउ मच यू वुड हैव सबट्रैक्टेड? 3500 फर्नीचर तो भैया साधु आदमी है, बुक वैल्यू पे ही मेंटेन होता है. आया बुक वैल्यू, गया बुक वैल्यू. प्रॉफिट लॉस तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा कम हो रहा है. याद करो डेप्रिसिएशन चैप्टर 11 स्टैंडर्ड. रिमेंबर, बाय कैश बैंक, पहले क्या लिखते थे? बाय डेप्री, फिर बाय कैश बैंक, फिर बाय पीएनएल या टू पीएनएल. तो वो जो एसेट का क्रेडिट में टोटल आता था ना, डेप्री, कैश और पीएनएल, वो बुक वैल्यू थी. एसेट में से बुक वैल्यू ही जाती थी. पीएनएल तो प्रॉफिट लॉस अलग से पीएनएल में दिखता था आपका. प्रॉफिट गोज टू क्रेडिट ऑफ पीएनएल, लॉस गोज टू डेबिट ऑफ पीएनएल. एसेट में से एवरी टाइम ऑलवेज द बुक वैल्यू. ओके, कीप दिस इन माइंड. या सर अगर 3500 नहीं दिया रहता तो पूरा 2000 ही माइनस करते ना फिर. अगर 3500 नहीं दिया होता, नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या अज्यूम करते? 2000 2000 क्या अज्यूम करते? वही सेल वैल्यू, वही बुक वैल्यू, वही सेल वैल्यू, वही बुक वैल्यू. तो फिर इन दैट केस वुड देयर बी एनी प्रॉफिट और लॉस? नो नो तो मशीन अपना फर्नीचर में से कितना माइनस करते? 2000 और नो प्रॉफिट नो लॉस. इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाता, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं जाता. परफेक्ट. ओके, हमने किया भी है 1-2 सम में पहले. देन कैंटीन कलेक्शन कहाँ पे जाएगा? कैंटीन कलेक्शन इज व्हाट? इनकम डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. एड टू बिल्डिंग लायबिलिटी एड टू बिल्डिंग फंड. अगर कुछ बिल्डिंग फंड है तो, अगर नहीं है तो अलग से लायबिलिटी जाएगा. लायबिलिटी में कैपिटल फंड में नहीं, बिल्डिंग फंड. जितने फंड है अलग अलग दिखाई देंगे. मतलब ये पैसा आपने बिल्डिंग बनाने के लिए रेज किया हुआ है, तो इसका एसेट साइड पे जो रोकड़ा है वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करना है. एंडाउमेंट फंड स्पेसिफिक पर्पस का फंड है ये. इसको एंडाउमेंट फंड बोलते हैं. जिसका डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस से आए उसको बोलते हैं एंडाउमेंट फंड. उसका पर्पस स्पेसिफिक है, बिल्डिंग बनाना.
और कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, कैपिटलाइज बोला होता तो कैपिटल फंड में ऐड कर देते, उसका पर्पस जनरल है। वो कैपिटल फंड का पैसा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेग्राउंड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में, कहीं पर। With the additional information given below, prepare income expenditure. Subscription receivable देखो दो दिए हैं, 31st March 06, 31st March 07। ओके, जिसको ये सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया उसको एनपीओ का ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ लो। ये जड़ी बूटी है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ध्यान से पढ़ो, 31st March 06 का कितना था रिसीवेबल, लास्ट ईयर का कितना रिसीवेबल था? 1000। ओके, अभी हमने ऑलरेडी ऊपर चेक किया, लास्ट ईयर का कितना दिख रहा था अपने को रिसीवेबल? 500, लेकिन नीचे 1000 दिया है, ऊपर 500 दिया है, ये क्या झोल है? Still in arrears. क्या है ये? What is the meaning of this, Sachi Gosalia? Something important is being taught. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नीचे कितना दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में कितना है पढ़ो, 1000। लेकिन अभी अभी ऊपर देखा 500 है, ऊपर 500 नीचे 1000, ऐसा कैसा? व्हाट डज दिस मीन? यूज योर ब्रेन्स, कम ऑन। सर बोला ना, व्हाट डज 500 is still arrears. स्टिल इन अरियर्स है 500, कैसा पता चल रहा है? देखो 06 का कितना मिलना बाकी था? 1000। ऊपर रिसीट में दिख रहा है 500, मतलब क्या? 1000 में से 500 मिला है ये साल, तो अभी भी कितना मिलना बाकी होगा? स्टिल कितना मिलना बाकी है? स्टिल इन अरियर्स कितना है? 500। बेसिकली लास्ट ईयर एसेट में कितना दिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? लास्ट ईयर 1000, जिसमें से 500 मिला है, तो स्टिल करंट ईयर एसेट में कितना जाएगा? 500। स्टिल इन अरियर्स, अभी भी मिलना बाकी है। समझ में आ रहा है कुछ? समझो नीचे 1000 के जगह 700 दिया होता, 1000 के जगह 700 दिया होता तो 200 still in arrears. 200 would have been still in arrear. तो लास्ट ईयर एसेट इट would have been 700, जिसमें से 500 मिला है रिसीट साइड, और करंट ईयर एसेट 200। आर यू अंडरस्टैंडिंग ग्रुप एसेट? अगर नीचे एडजस्टमेंट में भी 500 ही दिया होता लास्ट ईयर का रिसीवेबल, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली लास्ट ईयर एसेट 500, बस पूरा का पूरा मिल चुका है। तो स्टिल इन अरियर्स जैसा लफड़ा नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तब तो इसमें 500 जो डिफरेंस आ रहा है अरियर्स का, वो मतलब कंटिन्यू हुआ ना? वो कंटिन्यू हुआ, वो लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, वो करंट ईयर भी मिलना बाकी, कंटिन्यू हो गया लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट। सो बेसिकली नीचे जो 1000 दिया है उसमें एडजस्टमेंट अमाउंट इज ओनली 500, कि 500 ऑलरेडी ऊपर था ना रिसीट में, तो लिखा हुआ है एक इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट। एडजस्टमेंट अमाउंट इज नॉट 1000, एडजस्टमेंट इज ओनली 500। गॉट इट? दैट 500 प्लस आउटस्टैंडिंग 500 होएगा। तो लास्ट ईयर एसेट में 500 प्लस 1000 जाएगा ना? 1000 जाएगा, और करंट ईयर एसेट में 500। लास्ट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है। बैठा कि नहीं दिमाग में? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कृषा जी को समझ रहा है? कृषा संघवी, कृषा संघवी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। देन करंट ईयर 31st March 07 का रिसीवेबल 600 रुपया, क्या होगा इसका? दो इफेक्ट, वेरी सिंपल। Current year asset and add to Current year income. asset. करंट ईयर एसेट एंड Add to income. Add to income. एड टू इनकम। कौन सा वाला इनकम? 3 है वहां पे, मेरा तो दिमाग चक रहा है। 2007 07 वाले को ऐड करना है, 6 वाले को ऐड करना है, किसमें? 07. 07. तो 507. करंट ईयर का इनकम है, उसी को ऐड करोगे रिसीवेबल। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपया। लास्ट ईयर लायबिलिटी ऐड टू सब्सक्रिप्शन दिस ईयर। नहीं आएगा ना, Very एक good. ही इफेक्ट आएगा सर। एक इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट आएगा? सर दो आएगा ना एडजस्टमेंट में? सर एडजस्टमेंट में दो आएगा, लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड ऐड टू सब्सक्रिप्शन। ऐड करना है कि नहीं? बोलो। नहीं ना सर, अलग हाँ से सर, दिया ये है साल तो। का सर एक्सपेंस अलग दिया है ना। हाँ सर, अलग से दिया है। सर अलग से दिया अरे है। सर ये मेरे साल का बंधुओं, एक्सपेंसेस वो होगा। अलग दे ही नहीं सकते,
वो लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है, रिसीवेबल नहीं, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है। वो ये साल के रिसीव पेमेंट में दिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो पैसे तो आपको लास्ट ईयर मिल चुके हैं। लास्ट ईयर का प्री रिसीव का मतलब क्या, ये 200 रुपीज पैसे आपको लास्ट ईयर मिल चुके हैं, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। तो ये प्री रिसीव्ड करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में दिखेगा ही नहीं, कभी एडजस्टमेंट में ही आएगा। उसका दो इफेक्ट ही रहेगा, हमेशा दो इफेक्ट। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड हमेशा दो इफेक्ट। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? एक लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड एक ऐड टू सब्सक्रिप्शन। अभी कौन सा सब्सक्रिप्शन में ऐड करोगे? दिस ईयर 2007। 2007। क्यों? क्योंकि ये 200 इनकम ये साल की है, लेकिन पैसे लास्ट ईयर मिल लेते, तो ये साल की इनकम में ऐड होगा 200 रुपीज, डेफिनेटली ऐड होगा। गॉट इट? देखो ध्यान से सुनना, जब ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो माइनस वाला एडजस्टमेंट नहीं होता, प्लस वाला दोनों एडजस्टमेंट होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होगा प्लस, और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड भी प्लस होगा। ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन में माइनस वाला एडजस्टमेंट नहीं होता, प्लस वाला तो दोनों होगा। इज दिस क्लियर? वो अगर आप शॉर्टकट से जा रहे हो तो प्लस वाला तो दोनों होने वाला है। और लॉजिकली सोचो क्यों हो रहा है? एक तो रिसीवेबल है करंट ईयर का, वो रिसीट पेमेंट में दिख ही नहीं सकता क्योंकि अभी भी मिलना बाकी है। इनकम करंट ईयर की है तो ऐड टू इनकम एंड एसेट। और दूसरा क्या प्लस करते हो? लास्ट ईयर का प्री रिसीव। लास्ट ईयर का प्री रिसीव का मतलब क्या? लास्ट ईयर आपको ये साल का पैसा मिल गया था, तो पैसे लास्ट ईयर मिल गए थे, लास्ट ईयर के रिसीट में आ चुका है, लेकिन इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो ये साल के इनकम में डेफिनेटली ऐड करना है उसको। ठीक है, दैट 200 रुपीज। तो इट विल हैव टू इफेक्ट्स, लास्ट ईयर लायबिलिटी प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर इनकम में ऐड, करंट ईयर इनकम में ऐड। ओके, then the last item 400 rupees. What is that 400 rupees? Subscription received in advance. What is that 400? Minus subscription of this year and liability. Current year pre-received, current year pre-received, इसका क्या इफेक्ट होगा? दो इफेक्ट, एक इफेक्ट क्या होगा? दो इफेक्ट, ये साल के सब्सक्रिप्शन में से माइनस और लायबिलिटी। सर सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, लायबिलिटी एक ही इफेक्ट आएगा ना सर। सब्सक्रिप्शन में दिया है 2008। हाँ वो ही ना, अलग से दिया है। ऊपर दिख रहा है ना 400, वही है, ये कोई अलग नहीं है। ऊपर देखो रिसीट साइड दिया हुआ है। एक बार कोई आइटम रिसीट पेमेंट में आ जाए तो उसकी एक ही इफेक्ट है, दूसरी इफेक्ट है ही नहीं, और वहां पे दिख भी रहा है आपको। 400 रुपए आपको 2008 के मिले हुए दिख रहा है ऊपर, वही 400 रिपीट करके दिया हुआ है 2008 का। माइनस क्यों नहीं करना है? माइनस क्यों नहीं करना है ध्वनि? व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू सबट्रैक्ट इट? अलग से दिया है, अलग से दिया है तो माइनस क्यों करना है? माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही इफेक्ट होगा उसका, लायबिलिटी। ओके, तो ऐसा मत सोचना सर ये ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, एक इफेक्ट होगा कि दो इफेक्ट। तो थंब रूल, एक बार कोई आइटम रिसीट पेमेंट में आ गई तो जिंदगी भर एक ही इफेक्ट, फिर कितनी भी बार एडजस्टमेंट में रिपीट करके देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एज दैट। ओके, वो 400 रुपया रिसीट में दिख रहा है, वो एक इफेक्ट लायबिलिटी दिया हुआ है आपने, उसको वापस रिपीट करके एडजस्टमेंट में देने दो, तो उसके वजह से उसकी इफेक्ट्स बढ़ नहीं जाएंगी, वो सेम इंफॉर्मेशन है, कोई अलग नहीं है। ओके, रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है, एक इफेक्ट लायबिलिटी दिखाई हुई है, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट ईयर के अंदर पड़ा नहीं है। सर एक इफेक्ट भी कैसे आएगा? वो तो 2008 में हमने डिस्कस किया था, वो लायबिलिटी में ऑलरेडी गया है ना, तो एडजस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं है, वो मैं एडजस्टमेंट का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वही ऊपर वाले 400 की बात कर रहा हूँ, वो उसी 400 का एक इफेक्ट बोल रहा हूँ, लायबिलिटी। ये एडजस्टमेंट तो टप इग्नोर मारो, वही रिपीट करके दिया है, रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द 4 सब्सक्रिप्शन, फटाफट समराइज कर रहा हूं, देख लो। जो रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर है वो 1000 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर है वो 1000 दिया हुआ है, उसका मतलब क्या? लास्ट ईयर 1000 मिलना बाकी था, जिसमें से रिसीट में ऑलरेडी दिख रहा है 500, मतलब ये साल 500 मिला है, तो अभी भी 500 मिलना बाकी है, तो 500 इज स्टिल इन अरियर्स। ओके, तो कैसे दिखाओगे? लास्ट ईयर एसेट 1000, जिसमें से 500 रिसीव्ड है, तो करंट ईयर एसेट खाली 500, तो लास्ट ईयर एसेट 1000, करंट ईयर एसेट 500, स्टिल इन अरियर्स। फिर आगे दिया हुआ है 600 रुपया, दैट इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, उसका दो इफेक्ट क्या होगा?
एड टू इनकम, ये मिलना बाकी है करंट ईयर का, एंड एसेट्स ऑफ करंट ईयर। फिर दिया हुआ है 200 रुपया, दैट इज प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर। उसका दो इफेक्ट क्या होगा, लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड इनकम में ऐड। ये एडजस्टमेंट, ये प्योर एडजस्टमेंट, ये रिसीट पेमेंट में दिखेगा भी नहीं ऊपर। 200 रुपया लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड इनकम में ऐड। एंड 400 क्या है, ऑलरेडी दिख रहा है ऊपर, रिपीट करके दिया हुआ है। ऊपर 400 दिया हुआ था प्री रिसीव, ओके, वो रिपीट करके दिया है, तो इग्नोर माना, वही 400 जो ऊपर है उसका एक इफेक्ट करंट ईयर लाइबिलिटी, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। इज दिस क्लियर? देन सैलरी टू स्टाफ आउटस्टैंडिंग। सैलरी टू स्टाफ आउटस्टैंडिंग, बताओ मुझे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करनी है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस, लास्ट ईयर लाइबिलिटी करना है, माइनस करना है कि नहीं करना है? करना है। सैलरी में थोड़ी कहीं ईयर वाइज दिया डेटा, सैलरी में तो इंक्लूडेड है, तो माइनस करो। ओके, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2000, क्या करोगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बताओ? Add to salary and liability. Add to salary and liability of current year. फिर कैंटीन एक्सपेंस प्रीपेड, दो प्रीपेड है, करंट ईयर प्रीपेड, लास्ट ईयर प्रीपेड। करंट ईयर प्रीपेड क्या करोगे? करंट ईयर प्रीपेड माइनस फ्रॉम कैंटीन एंड एसेट। ईयर वाइज नहीं है तो लफड़ा नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, लेस करो, एसेट में डालो। लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करोगे? लास्ट ईयर प्रीपेड लास्ट ईयर एसेट। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के जैसा है। ओके, करंट ईयर प्रीपेड इज क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर प्रीपेड इज ओपनिंग स्टॉक। फर्नीचर एट बुक वैल्यू 14,000। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, वर्किंग नोट, फर्नीचर लास्ट ईयर कितने का फर्नीचर था? 06 में कितने का फर्नीचर था लास्ट ईयर अपने पास? 14,000 था ना। तो कहाँ दिखाओगे ये फर्नीचर 14 का? पहले लास्ट ईयर का दिया हुआ बैलेंस शीट, लास्ट ईयर एसेट, उसको लेके आओगे किधर? करंट ईयर में। फिर हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स? 2। टोटल कितना पॉसिबल है? एसपीडी, टोटल एसपीडी है, तो पहला क्या करते हो? सेल में क्या माइनस करते हो? बुक वैल्यू। कितना था बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड? पढ़ो, 3500। 14,000 में से 3500 का बिक गया, इस साल के बिगिनिंग में बिक गया, बचा 10.5। चेक करो कुछ परचेज किया क्या फर्नीचर? हैव यू बॉट एनी फर्नीचर? और होता तो कहाँ दिखता? पेमेंट साइड दिख जाता। हैव यू बॉट एनी? नो। सो परचेज कुछ नहीं है। अच्छा, डेप्री है क्या फर्नीचर पे? चेक करो। यस, दिया हुआ है पॉइंट नंबर आई में, देखो लास्ट एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर आई, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 10%। 10%। 1050 पे करोगे तो कितना होता है? 9450। ये आपका आउटर कॉलम फर्नीचर करंट ईयर में जाएगा, इसीलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है। लास्ट सम में पता है आपको वैल्यू दे दी थी, तो हमने डेप्री ढूंढा था। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस? सर पर उधर दिया है 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो अमाउंट दिया है उस पे ना। क्लोजिंग ना, वो 14 तो ओपनिंग है। हाँ, क्लोजिंग कितना है? 10,500 ही बचा ना एंड में। हाँ, वो है उसी पे करने का, समझा? वो पूरा साल वापरा। देन अच्छा, दोनों में से एक चीज देगा, समझ में आ रही है ये बात? या तो डेप्री देगा या तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट देगा। लास्ट समय अपने को क्लोजिंग वैल्यू दिया था तो हमने ढूंढा था डेप्री, यहाँ पे डेप्री दे दिया डायरेक्टली। वैसा ही बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कितना था बिगिनिंग में? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द बिगिनिंग? 15,000। बिल्डिंग दिया था आपको 15,000। वर्किंग नोट टू बिल्डिंग, वर्किंग नोट खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है आपका मर्जी, चलेगा। बिल्डिंग था बिगिनिंग में 15,000। ओके, अब बताओ मुझे, इज देयर एनी सेल ऑफ बिल्डिंग? नो। इज देयर एनी परचेज ऑफ बिल्डिंग? यस। कहाँ दिया है? कंस्ट्रक्शन आपने दिया ना अलग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मैंने करवाया ना अभी पेमेंट साइड पे एक आइटम। कंस्ट्रक्शन मींस व्हाट? परचेज और सेल? परचेज। बिल्डिंग खरीदा नहीं, बनाया, बात तो एक ही हुआ, खर्चा हो गया है। परचेज ऐड करो, 15 और 15 कितना हो गया? 30। अब बताओ डेप्री है क्या कुछ बिल्डिंग पे? चेक करो, इज देयर एनी डेप्री ऑन बिल्डिंग? कुछ दिया है? नहीं, तो ऑटोमेटिकली कितना बचा बिल्डिंग? 15 + 15 30। ओके, सेल नहीं था, डेप्री नहीं था, खाली परचेज था। कंस्ट्रक्शन मींस परचेज।
तो 15 + 15 30। एफडी विथ बैंक, एफडी विथ बैंक शुरू में कितना था फिक्स्ड डिपॉजिट? 10,000, that will go to last year asset. वही same fixed deposit will be carried forward to which year? Current year asset. Is there any change? Check, check, check. Is there any sale of fixed deposit? Is there any purchase of fixed deposit? Is there any depreciation or appreciation on fixed deposit? Check, check, check. कुछ है? कुछ नहीं है. तो as it is, last year का carry forward to this year, 10, 10. खत्म? डॉट्स दे दो फटाफट. सब्सक्रिप्शन, हाउ मेनी डॉट्स? सब्सक्रिप्शन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट्स. करंट ईयर मतलब 07 वाले पे 2 डॉट्स, 06 वाले पे 1 डॉट, 07 वाले पे सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, 06 वाले पे 1 डॉट. सैलरीज टू स्टाफ, हाँ, नॉट सेक्रेटरी. 2 सैलरीज है हमारे पास, सेक्रेटरी भी है, स्टाफ भी है. एडजस्टमेंट खाली स्टाफ सैलरी पे, स्टाफ सैलरी पे 2 डॉट्स. कैंटीन एक्सपेंस 2 डॉट्स, कैंटीन एक्सपेंस 2 डॉट्स. फर्नीचर 2 डॉट्स, सेल और डेप्री. फर्नीचर 2 डॉट्स. बिल्डिंग 1 डॉट, कंस्ट्रक्शन ही है. बिल्डिंग 1 डॉट, कंस्ट्रक्शन ही है. बस डॉट रिपीट कर रहा हूं, सुन लो. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 07 पे 2 डॉट, 06 पे 1 डॉट. सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ सैलरी पे 2 डॉट. कैंटीन एक्सपेंस 2 डॉट. फर्नीचर 2 डॉट. बिल्डिंग 1 डॉट. दैट्स इट. स्टार्ट करो, साथ में करते जाओ ध्यान से. सैलरीज, एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज. मैं अलग अलग दिखाऊंगा क्योंकि स्टाफ सैलरी पे डॉट है और सेक्रेटरी पे नहीं है. तो सैलरी टू सेक्रेटरी, सैलरी टू सेक्रेटरी सीधा आउटर कॉलम में धकेल दो 6,000 रुपए. सैलरी टू सेक्रेटरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम. फिर लिखना टू सैलरी टू स्टाफ, टू सैलरी टू स्टाफ, ये 5,000 इनर कॉलम में. इस पे देयर आर 2 डॉट्स. एक है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एक है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. सोच सोच के करने का. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते हो, 07 ब्रैकेट में दिखाना. 07 CY या 07 आपने देखा होगा, मैं लिख रहा हूं ऊपर. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 2,000, ऐड करो, ये देना बाकी है. एंड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस कर दो. ये क्यों लेस किया? क्योंकि जो हमने पे किया हुआ है 5, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का 1,000 माइनस कर. तो 5 + 2 7 - 1 6,000. ये हो गया सैलरी का काम तमाम. ओके, फिर आता है कैंटीन एक्सपेंस. सो टू कैंटीन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस जो है दिख रहा है वहां पे, कैंटीन एक्सपेंस 12,000, वो पेमेंट है. उसको इनर कॉलम में दिखाओ. वो पे किया है, रोकड़ा दिया है, जरूरी नहीं है कि उतना ही एक्सपेंस इनकर किया हो. उस पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड. करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? करंट ईयर प्रीपेड कैंटीन, करंट ईयर प्रीपेड वी विल सबट्रैक्ट 07. 07 का आप सबट्रैक्ट करोगे, दैट इज 1,500. इसका अर्थ क्या हुआ? 12,000 में 1,500 पड़ा हुआ है, तो हटाओ उसको. क्या बोल रहा है? हाँ सर, रिसीट पेमेंट में कुछ भी दिखा है तो मतलब वो परचेज और सेल किया है ना, मतलब उतना कैश हाँ. और मिल. हाँ, कैश है ना वो मतलब कैश पेमेंट में दिख रहा है, मतलब उतना पैसा दिया, मतलब एसेट खरीदा. रिसीट में दिख रहा है, मतलब पैसा आया, मतलब एसेट बेचा. कैश अकाउंट है वो, कैश अकाउंट. ओके. देन प्रीपेड एक्सपेंस कैंटीन यू सबट्रैक्ट करंट ईयर. लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या करना है बताओ? लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड, ऐड. लास्ट ईयर का प्रीपेड कैंटीन ऐड कर देने का. क्यों ऐड कर देने का? ये पैसा अपने लास्ट ईयर चुकाए हैं, लेकिन एक्सपेंस ये साल को बिलोंग करता है 1,000. मुझे जरा सोच के बताना, ये लास्ट ईयर का प्रीपेड कभी करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में दिख सकता है? लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस कभी दिख सकता है करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में? इम्पॉसिबल. कहां दिखेगा ये? कब पे किया था आपने? लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर के प्रीपेड में दिख जाएगा वो, लास्ट ईयर के पेमेंट में और लास्ट ईयर के एसेट में. इज इट क्लियर? करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में पॉसिबल ही नहीं है लास्ट ईयर का प्रीपेड देखने. तो उसका 2 इफेक्ट हमेशा सेम है. क्या है? लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंस, ऐड टू एक्सपेंस, सॉरी,
expense belongs to this year, add to expense. ऐसे प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, उसका भी दो इफेक्ट सेम है, हमेशा सेम, लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड एड टू इनकम, ओके, बिलोंग्स टू दिस ईयर. लास्ट ईयर का प्रीपेड एड टू एक्सपेंस, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड एड टू इनकम, ये दो के इफेक्ट कांस्टेंट है, लास्ट ईयर लायबिलिटी एसेट और इनकम एक्सपेंस में ऐड. ये कितना होता है आउटर कॉलम? 11,500 होता है. 11,500 इज द इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर. ओके, सो कैंटीन होने के बाद miscellaneous expense. Is there any dot on miscellaneous expense? Please check. Any dot on miscellaneous expense? No dot. So outer column 2,500. Balance carried down. So that's closing balance, current year balance sheet, asset side, cash and bank. Current year cash is 1,300. Current year bank it is 4,000. Current year cash 1,300. Current year bank 4,000. Okay. Then what do we have? Construction of building. Construction of building, तो building को पूरा खत्म करना है. Building को पूरा खत्म करना है. बताओ मुझे last year कोई building थी क्या अपने पास? Was there any building in the last year? Check the adjustment. There was a building in the last year, right? Yeah. SK Somaya, you can. Yeah. Yeah. Last year की building, last year asset में दिखाओ. पहले लास्ट ईयर एसेट की पूरी कहानी एक साथ खत्म करनी है. एसेट की पूरी स्टोरी एक साथ खत्म करनी है आपको, याद रखना. लास्ट ईयर बिल्डिंग दिखाना है 15,000, ब्रिंग इट टू दिस ईयर 15,000. उस पे क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है? सेल, परचेज एंड डेप्री. इज देयर एनी सेल ऑफ बिल्डिंग? चेक ऑन द रिसीट साइड. नो. इज देयर एनी परचेज ऑफ बिल्डिंग? चेक ऑन द पेमेंट साइड. Yes, there is construction. So add construction of building. Add construction of building 15. So 15 और 15 हो गया 30. Is there any depreciation on building? Please check. Is there any depreciation on building? No depreciation. So outer column it should be 30,000. 15 plus 15, 30,000. Hope this is clear, all of you. All of you got that? Fine. Building khatam, kaam tamam. Then go to last receipt side. Opening balance, cash and bank. किधर जाएगा ये cash and bank receipt वाला? Last year balance sheet. Last year balance sheet. Opening balance तो यहाँ का closing balance. Cash is 2, bank is 12. Cash is 2, bank is 12. Then subscription 3 दिए हुए हैं. Okay, I'm writing first 07, then 06, then 08. 07 current year. Current year subscription किधर दिखाना है? Where do you show current year subscription? Current year subscription will be shown under income. Income side पे जाओ, 5,500. ये रोकड़ा मिला है बॉस, ये 5500 करंट ईयर का रोकड़ा मिला है, रोकड़ा. ओके, जरूरी नहीं है पूरी अर्न इनकम हो करंट ईयर की, इसमें भी एडजस्टमेंट है. ये रोकड़ा मिला है. क्या एडजस्टमेंट है? देयर आर 2 dots. What 2 adjustment we will do on this subscription? Can you guys tell me? What 2 adjustment you will do on this subscription? Outstanding. Current year. Current year. ये भी बोलना जरूरी है. Outstanding of current year. Add outstanding subscription current year मतलब 07. 07 का कितना मिलना बाकी है? नीचे देखो एडजस्टमेंट में 600 लिख दिया. और क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है? Last year received in advance. लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि वो पैसे लास्ट ईयर मिल चुके हैं, इनकम ये साल को बिलोंग करती है, तो वो भी ऐड हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 06 का पैसा 06 में, इनकम ये साल की कितना था? 200. अच्छा, कुछ लेस करना है इसमें से? बताओ मुझे. विल यू सब्सट्रैक्ट रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर और प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर? विल यू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस सब्सक्रिप्शन? बताओ. टेल मी. आर वी गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग? नो, बिकॉज दे हैव गिवन इट सेपरेटली ईयर वाइज. ईयर वाइज के केस में प्लस वाला ही एडजस्टमेंट होगा, माइनस वाला होने का सवाल ही नहीं है कुछ. दिस बिकम्स 6,300. ओके,
ईयर वाइज में सिर्फ प्लस वाला हमेशा, कोई भी पिछला सम उठा के देख लो, ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन दिया सब एडजस्टमेंट होंगे, ईयर वाइज में खाली प्लस वाला। फिर आता है 06, 06 का कहाँ जाएगा बताओ, 06 का कहाँ जाएगा, 06 का बैलेंस शीट कौन सा बैलेंस शीट, 4136 06 वाला लास्ट ईयर बैलेंस शीट, एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बट वाज इट ओनली 500? एडजस्टमेंट देखो, डॉट भी डाला है मैंने। हाउ मच वाज एक्चुअली आउटस्टैंडिंग? 1000। तो इधर कैसे लिखने का, 500 प्लस 500, ओके। 500 रिसीट वाला लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट वाला एक्स्ट्रा 500, लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट स्टिल इन अरियर्स। 1000 था, उसमें से 500 मिला है, 500 मिलना बाकी है। फिर आते हैं नेक्स्ट ईयर 08 वाला सब्सक्रिप्शन, 400 रुपया, वो कहाँ जाएगा 08 वाला 400? वेरी विल राइट दैट 08 का 400 लायबिलिटी ऑफ 7 07 करंट ईयर लायबिलिटी। वाई करंट ईयर लायबिलिटी? प्री रिसीव्ड था करंट ईयर का। आइडियली हम लोग लेस भी करते, लेकिन यहाँ पे लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईयर वाइज दिया है, अलग अलग दिया है, तो लफड़ा नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है ये, 400 रुपीज, 400 रुपीज ये लिख दिया हमने। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो वापस चले जाओ इनकम साइड पे, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक दैट इज इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक दैट इज इनकम which is 1000 rupees। वो 6400 को इग्नोर मारना, टोटल सब्सक्रिप्शन है वो। सेल प्रोसीड्स ऑफ न्यूज़पेपर दैट इज इनकम, सेल प्रोसीड्स ऑफ न्यूज़पेपर दैट इज इनकम, that's 400। then सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर दिखा मुझे, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट दिखा, वैसे ही बत्ती चमकना चाहिए, पूरा उड़ाओ start to end। Was there any furniture in the last year? Check. Was there any furniture in the last year? Yes. 14,000 Write it down. Last year asset में चले जाओ, लिख दो 14,000। Okay. See the method of doing the sum. See how I am doing. Think like this. Start to end आप पूरा पूरा उधर उड़ाते जाओगे ना, तो आपका कुछ मिस आउट नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट टैली हो जाएगा। फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट लिखो, then bring it to this year asset, furniture bring it to this year asset, then check for sale purchase debris, is there any sale on furniture, sale of furniture अभी देखा मैंने। बुक वैल्यू माइनस करनी है, सेल वैल्यू सर्कल करनी है, कितने का था, तो 3500 गया, बचा 10500। उस पे परचेज, डू यू हैव एनी परचेज ऑफ फर्नीचर, प्लीज चेक। Do you have any purchase of furniture? No. Do you have depreciation? Yes. Less depreciation at what rate? 10%. 1050. So that makes it 9450. 9450. Is it clear? अभी डेप्री का बाकी है इफेक्ट देना, मैं दूंगा एंड में, एडजस्टमेंट आएगी वापस दूंगा। अभी मैं डॉट वाला तभी का तभी जो एसेट है उसको खत्म कर रहा हूँ। फर्नीचर को मैंने पूरा खत्म कर दिया। अभी बढ़ो आगे, फर्नीचर के बाद कैंटीन कलेक्शन, सॉरी हाँ लॉस का अभी, लॉस का एंट्री आ जाएगा, अभी कर लो। लॉस का एंट्री 3500 का हमने 2000 में बेचा हुआ है, तो लॉस इधर ही रिकॉर्ड कर दो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल माइनस किया और लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो, 3500 माइनस 2000 दैट इज 1500। वो 2000 रुपए के जगह मैंने दो इफेक्ट दे दिए, 3500 एंड 1500। ओके, 3500 एंड 1500, लॉस भी रिकॉर्ड कर दिया। फिर आता है कैंटीन कलेक्शन। व्हाट इज कैंटीन कलेक्शन? दैट इज इनकम। So by canteen collection, how much is that? 12,000 rupees. Then you have donation for building fund. Where are you going to put donation for building fund, guys? Liability. Which liability? करंट ईयर Current year. लायबिलिटी, करंट ईयर लायबिलिटी। ये सब जो रिसीट में करंट ईयर रिसीव किए हुए फंड है,
Donations for building fund. Current year liability. How much is that fund? 10,000 rupees. Is it clear? 10,000 rupees. Specified donation. Got that? What next? With the additional information given, prepare income, expenditure and balance sheet. Subscriptions receivable. Last year का कितना receivable था? I think that was 1,000. Agree? Last year का 1,000 receivable था. So देखो उसमें से 500 हमने already लिखा हुआ है वो receipt वाला. Okay? Extra still in arrears कितना था? तो 500. One effect is last year asset. Second effect किधर जाएगा उसका? Current year asset. Still in arrears. तो outstanding subscription उसमें ऐसा दिखाना inner column 06 का 500 ये अभी भी मिलना बाकी है. 06 का 500 ये अभी भी मिलना बाकी है करंट ईयर एसेट. और फिर उसी के आगे दिख रहा है 600 रुपया. एडजस्टमेंट में देखो 600 रुपया करंट ईयर रिसीवेबल. करंट ईयर रिसीवेबल का क्या है? दो इफेक्ट्स. वन इफेक्ट इज ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इफेक्ट इज एसेट्स. 07 करंट ईयर एसेट 600. तो टोटल कितना मिलना बाकी है अभी? टोटल हाउ मच आर यू सपोज टू रिसीव? सो 1100 रुपीज. टोटल हाउ मच आर यू सपोज टू रिसीव? सो 1100 रुपीज. Is this clear? Total 1100. 600 of current year, 500 of last year. Is this clear? Is my video lagging? Net connection lag हो रहा है कि clear? सर थोड़ा lag हो रहा है? थोड़ा एकदम थोड़ा. नहीं सर एकदम बराबर है. Okay सर fine. Okay fine. ये तो चलेगा ना अलग अलग? हाँ अलग अलग लिखोगे तो ऐसा लिखना outstanding subscription 06 500, outstanding subscription 07 600. Okay, 0607 mention करना होगा. Then subscription received in advance. Received in advance last year का pre-received. What were the two effects? Last year का pre-received का दो effects क्या होगा? एक तो हमने add किया हुआ है subscription में. What is the second effect? Last year का pre-received का second effect बताओ. Last year liability. Last year liability. Subscription received in advance 200 रुपया. लास्ट ईयर का लायबिलिटी. ओके, और इनकम में ऐड दोनों हो गए. फिर आता है 400. विल यू गिव एनी फर्दर इफेक्ट ऑफ दैट 400? $1 million क्वेश्चन. विल यू गिव एनी फर्दर इफेक्ट ऑफ दैट 400 एडजस्टमेंट वाला 400? No. No. Why? We have already written that. Can you see this, guys? Can you see this subscription pre-received 400? ये वही है ऊपर जो दिया हुआ है ना pre-received, सेम है. रिपीट करके दे दिया है तो दूसरी बार देने की जरूरत. तो सब्सक्रिप्शन में आपने उसको क्यों नहीं लिया, मतलब माइनस करने के लिए रिसीव्ड इन एडवांस? इसको नहीं लिया. हम लोग जो इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं हाँ उसमें हम लोग ने 400 माइनस नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर देखो ना वो 400 अलग है और 5,500 अलग है. मेरे को इस साल 50 जन से 10,000 रुपया फीस मिलनी है. 5 लाख रुपया फीस मेरी इनकम है. ठीक है, मेरे को नेक्स्ट ईयर की फीस 30,000 आ गई है अभी. तो टोटल कितना रोकड़ा मिला मेरे को? 5,30,000. 5 लाख करंट ईयर का, 30,000 नेक्स्ट ईयर का. तो क्या वो 30,000 ये 5 लाख के अंदर पड़ा हुआ है? नहीं. Should I subtract it to arrive at current year's income? Yes. 30,000 5 लाख से माइनस करूं? नहीं 530 से 30 लाख माइनस कर. 530 से 30 माइनस करता. 5 लाख से तो नहीं करता ना. वो 5 लाख है ना, वैसे वो 5,500 है करंट ईयर का. उसके अंदर नहीं पड़ा है ना, अलग अलग दिया है. 5,500 करंट ईयर का मिला है और 400 नेक्स्ट ईयर का मिला है. दोनों अलग अलग है. तो समझो कि लास्ट सम देख, लास्ट सम 50,000 एक साथ दिया था, उसमें वो पड़ा हुआ था नेक्स्ट ईयर का, तो मैंने माइनस किया था. सर अगर 2008 में वो लोग ने 400 दिया रहता और नीचे एडजस्टमेंट के टाइम पे वो लोग ने उधर 800 दिया रहता तो हम लोग फिर इसमें 400 ऐसा होएगा. अरे पॉसिबल ही नहीं है. 400 जो ऊपर दिया है ना वही रिसीव्ड इन एडवांस है, तो नीचे अलग से कैसा 800 हो सकता है? वो 400 ही रहेगा. जो ऊपर दिया वही फिगर मिलेगा नीचे. कम भी नहीं होएगा, ज्यादा भी नहीं होएगा, उतना ही रहेगा रिसीव्ड इन एडवांस. उतना ही कैश मिला है ना तुमको नेक्स्ट ईयर का.
हाँ मेरे को नेक्स्ट ईयर की 30,000 रुपया फीस मिली है रिसीव्ड इन एडवांस, तो रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 30,000 ही है। 40,000 कैसा होगा? 40,000 होगा तो कैश में दिख जाएगा ना 40,000, हाँ सर। तो ऊपर फिगर है वही दिखेगा। कम ज्यादा पॉसिबल, कम ज्यादा वो रिसीवेबल में पॉसिबल है कि लास्ट ईयर 1000 था उसमें से 500 मिला, लास्ट ईयर 1000 था उसमें से 700 मिला, लास्ट ईयर 1000 था उसमें से 800 मिला, 200 स्टिल इन अरियर्स, 300 स्टिल इन अरियर्स, वो पॉसिबल है। रिसीव इन एडवांस में तो पॉसिबल ही नहीं है, जितना रोकड़ा है वही मिलेगा ना, कैश में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। देन 400 हो गया। एक ही इफेक्ट है जो रिसीव्ड इन एडवांस, लेस वेस नहीं करना है, लिखा हुआ है सैलरी टू स्टाफ आउटस्टैंडिंग। फटाफट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? ऐड टू सैलरी किया हुआ है, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? बताओ बताओ बताओ। लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी। करंट ईयर कितना है आउटस्टैंडिंग? 2000। लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग था, उसका दो इफेक्ट क्या है बताओ? लेस तो किया हुआ है हमने, वंशी कामदार। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लास्ट ईयर का लेस करने के बाद व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, Assets, एसेट। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, outstanding. We wrote now liabilities में. I thought you're asking next हाँ one. ये तो करंट ईयर का है 2000, तो लास्ट ईयर का किधर लिखोगे? Last year के बैलेंस शीट में. किधर? लायबिलिटी की एसेट। Liabilities. हाँ तो बोलो ऐसा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर लायबिलिटी कितना जाएगा? 1000। देन नेक्स्ट वन इज कैंटीन एक्सपेंस प्रीपेड। प्रीपेड कैंटीन दो है, करंट ईयर लास्ट ईयर। करंट ईयर प्रीपेड लेस किया हुआ है, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ करंट ईयर प्रीपेड? बताओ। Assets. करंट ईयर प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट विच एसेट? ये बोलना जरूरी है। Current year. करंट ईयर एसेट प्रीपेड कैंटीन। इधर दो बैलेंस शीट है, एसेट बोल के खत्म नहीं हो रहा है। करंट ईयर एसेट कितना है? 1500। प्रीपेड कैंटीन 1500। तो लास्ट ईयर का प्रीपेड कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर का प्रीपेड कहाँ जाएगा? एक इफेक्ट ऐड किया हुआ है लास्ट ईयर बैलेंस शीट में। किधर? एसेट। एसेट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट कितना था लास्ट ईयर का? 1000। लास्ट ईयर का 1000, ये साल का 1500। देन वी हैव फर्नीचर एट बुक वैल्यू। देख लेने का वापस, फर्नीचर लिखा हुआ है आपने, यस। लास्ट ईयर एसेट ब्रॉट इट टू दिस ईयर एसेट। फिर सेल किया, लॉस रिकॉर्ड किया, डेप्री किया। डेप्री का सेकंड इफेक्ट बाकी है, आपको चाहिए अभी दे सकते हो। डेप्री का सेकंड इफेक्ट क्या किया है मैंने? लेस फ्रॉम फर्नीचर किया हुआ है, सेकंड इफेक्ट बाकी है। तो चले जाओ एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1050। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1050। ओके, ये भी लिख दिया, डेप्री ऑन फर्नीचर 1050। देन व्हाट नेक्स्ट? बिल्डिंग। बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट लिखा हुआ है क्या? चेक कर लेना। यस लिखा हुआ है, ये रहा। ब्रॉट इट टू दिस ईयर, यस लिख दिया। फिर कंस्ट्रक्शन ऐड कर लिया। कुछ बचा है बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट? डेप्री सेल कुछ है? खत्म। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक लिखा है क्या? देखो चेक करो, लिखा हुआ है क्या आपने? फिक्स्ड डिपॉजिट लिखा हुआ है? नहीं लिखा है तो लिख दो। लास्ट ईयर एसेट कितना था फिक्स्ड डिपॉजिट? हाउ मच वाज फिक्स्ड डिपॉजिट इन द लास्ट ईयर एसेट? 10,000. 10,000. Bring it to this year. Fixed deposit 10,000. No sale, no purchase, no depre, nothing. Book value of furniture sold 3500. कुछ करना है कि we have already given the effect? Hello. We have already given the effect, right? 3500. Book value minus किया, profit loss record किया. Depreciation का भी दो इफेक्ट दे दिया, less from asset and expenditure. I think we have completed the entire sum. Tell me total of balance sheet opening वाले का. Total of balance sheet बोलो. 45,000. 55,000. हैं? 55. 55,000 total. फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं लिखा होगा जो 45 बोल रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट दिया है, देखो इन्फॉर्मेशन। Capital fund 53,800.
कैपिटल फंड इज 53,800. सरप्लस डेफिसिट के लिए टोटल Deficit 28,550 total. टोटल इज 28,550. एंड डेफिसिट ऑफ 8,850. बाय डेफिसिट के लिए क्या लिखने का ब्रैकेट में? Excess of expenditure over income. शाबाश. देन ये डेफिसिट क्या करना है आपको? कैपिटल फंड से Minus. सबट्रैक्ट करना है. कैपिटल फंड था आपका 53,800 लेस डेफिसिट 44,950. 44,950 and tally is on 57,350. 57,350. That completes the problem. Any doubts? Scan through it. सर टैली किस पे हुआ? 57,350. 57,350. 57,350 tallies. Tell me. दोनों सम में कोई डाउट, कोई आइटम, एनी एडजस्टमेंट? सिमिलर सम होमवर्क आने वाला है. ओके, खुद से ट्राई करना है आपको. डाउट्स हो तो लेट मी नो. And that's it. Still, if you have doubts, wait. Otherwise, you can leave. We'll meet day after tomorrow. Bye bye. See you. Take care. Bye, sir. Bye.